જય શ્રી કૃષ્ણ. ગુડ મોર્નિંગ. મેઇન વ્યક્તિ જે બોલવાવાળી છે આવે છે, અંદર રહે છે મારા ફાધર. ત્યાં સુધી હું થોડું જ્ઞાન બાકી જાણી. યસ, આપ સૌ અહીંયા હિન્દી ગુજરાતી બધા ગુજરાતી વાળા છો એટલે આપ નહીં સમજતા. ઠીક છે. આપણે અહીંયા भेगा થયા છીએ. हम जिस चीज के लिए इकट्ठा हुए हैं, जो शिविर के लिए, जो 3 दिन की, उसके बारे में मैं थोड़ा बताऊं. हमने जो ये कंसेप्ट किया है वो ट्रेडिशनल योग को एक टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट किया है. मैं अभी, जैसे आप सबने योग के क्लास देखे होंगे जहाँ पे इंसान क्लास लेता है ना, 10 क्लास चल रहे तो सब क्लास लेते हैं, पर मेरा पूरा काम अलग है. हम मैट पे नहीं करवाते, हम कुछ इंस्ट्रूमेंट पे करवाते हैं. दूसरी चीज, लाइव नहीं होता, होता लाइव ही है, बट टेक्नोलॉजी के थ्रू, टीवी के माध्यम से. तो आपको आना है, उसको अच्छे से करना है. मेरा काम क्या होगा? मेरा काम होगा कि आप सबको करेक्ट करना. तो ये है YBT, ट्रेडिशनल योग, जिसमें आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन सब कुछ होता है. और शायद ऐसी अनुभूति आपने जिंदगी में कभी नहीं करी होगी, वैसी अनुभूति होगी आने वाले 3 दिन. बेसिक कोई क्वेश्चन, क्वेरी अगर कुछ है तो हम बात करते हैं थोड़े टाइम के लिए. तब तक खाने देते हैं सर को. एक क्वेश्चन क्वेरी हो तो बात करिए आप, आगे બધા ક્વેશ્ચન માર્ક સાથે તો આયા જશો કે વાયબીટી શું છે, આમ છે, તેમ છે, ફલાણું. તો કંઈ ક્વેશ્ચન હોય તો કરો. એ અઘરો સબ્જેક્ટ છે. ચક્ર દેખાય ખરા? મારામાં બાકીના એક્સરસાઇઝ કરાવે, હું યોગ કરાવું. એ ડિફરન્સ. બેઝિકલી ચક્ર દેખાતા તો નથી, એટલે ચક્ર ઉપર વાત કરવી જ બે મતલબ છે. ચક્ર છે શરીરની અંદર તો સારું કોને કરાય? ચક્રને કે શરીરને? શરીર. અને શરીરને સારું કરશો એટલે ચક્ર ઓટોમેટિકલી સારા થવાના. કારણ કે ચક્ર દેખાતા નથી, શરીર દેખાય છે. તો જે દેખાય એના ઉપર કામ કરાય, જે ના દેખાય એના ઉપર કામ કરાય નહીં ને. એટલે ચક્ર ઓટોમેટિકલી, તમે શરીર જ્યારે સારું કરો ને એટલે ઓટોમેટિકલી એ ચક્ર એની રિધમમાં ચાલવા માંડે. ચક્ર એટલે બેઝિકલી શું? ચક્ર એટલે શું? તો 7 અલગ અલગ ચક્ર કેમ છે? ચક્ર એટલે બેઝિકલી જંક્શન પોઈન્ટ. શરીરની અંદર 72,000 નાડીઓ છે જેમાંથી પ્રાણનું વહન થાય છે. 96,000 કિલોમીટર પાઇપલાઇન છે જેમાંથી બ્લડનું સર્ક્યુલેશન થાય છે. તો આ બધી જ નળીઓ જ્યાં સૌથી વધારે ભેગી થાય છે એ જંક્શન પોઈન્ટ, અને એને ચક્ર ડિફાઇન કરાય. એટલે બાકી કાપી એટલે ચક્ર દેખાય નહીં, પણ નળીઓ અને પ્રાણ પણ દેખાય નહીં. તો 72,000 નાડીઓમાંથી પ્રાણનું વહન 24 કલાક થાય છે. તો જે દેખાય છે એના ઉપર કામ થઈ શકે, જે નથી દેખાતું એના ઉપર વાત થઈ શકે. એટલે 3 દિવસની અંદર બની શકે તમે ગુરુવારે મને બુધવારે કહેશો કે તમે જે ફીલ કર્યું છે 3 દિવસમાં, ધેટ ઇઝ અમેઝિંગ. આઈ થિંક સર આવી ગયા છે. ઓકે ડન. બીજું કઈ બાકી તો એ કહેશે વધારે. YBT is a yogic balance therapy, right? Yogic balance therapy class છે. એને નવો અમે છે ટ્રેડિશનલ યોગ, જેમ વાત એ ટ્રેડિશનલ યોગ છે એને એક નવી રીતે, આ બધી જ વસ્તુ છે 6000 વર્ષ જૂની, હે ને? તો એ એક્ઝામ્પલ પણ સર આપશે તમને બહુ સારી રીતે કે છે બધું જૂનું છે, નવું કંઈ નથી, પણ એને નવી રીતે પેશ કર્યો છે. દિલીપ ધોળકિયા, મારા ફાધર, મારા ગુરુ. જય શ્રી કૃષ્ણ. એક કથા પૂરી કરીને આવ્યો છું. એ 8 થી 9 ની કથા હતી. અને જય શ્રી કૃષ્ણ બોલો. પોલીસ એ બધું તમે સાંભળો ને એની ગેરંટી જરાય નહીં, ખબર છે?
બધાને ગુજરાતી આવડે છે? ન આવડતું એવું એક નથી ને? तो હું શું કરું તમે કહો, मैं क्या करूं? आप ही बता दीजिए। नहीं समझ लोगे नहीं तो फिर आपका एक घंटा बिगड़ेगा, ये मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग हिंदी तो समझ लोगे, गुजराती वाले गुजराती में हिंदी में है को छोड़कर और कोई फर्क नहीं है। हमारे सौराष्ट्र में कहते हैं ना तो बाबा बनिया है तो हिंदी बोलना पड़ेगा, तो है लगा दीजिए हिंदी होगा। गुजराती में पीछे ऐसा है, तो ऐसी हिंदी मेरी नहीं है, अच्छी है, ठीक है, ऐसा है ना, चलेगा। ओके, कभी कभी गुजराती आ भी जाएगी। जय श्री कृष्ण। तो मैं अभी मैंने बताया कि मैं जो भी बोलूंगा यहाँ वो सब आप सुनोगे, इसकी गारंटी बिल्कुल ही नहीं है। जहां जहां आपको अच्छा लगे वहां बधाई देना। क्या बधाई लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। बुद्ध ने उनके समय में कहा था कि समाज बहरा है, और बुद्ध जो भी भाषण बोलते थे ना वो एक ही सेंटेंस 3-3 बार बोलते थे। तो किसी ने पूछा आप 3 बार क्यों बोलते हो? तो बुद्ध ने बोला कि तीसरी बार में तो ऐसा होता है कि तीसरी बार में ही सुन लेंगे, कम भी, वो भी तो हम करीब करीब सुनते नहीं हैं। तो अगर एक बार सही चीज सुन ली जाए तो आप उससे बच नहीं सकते। बच सकते हैं, सही सुन लिया जाए तो बचना मुश्किल है। तो मैं कोशिश करता हूं, मैं जो भी बोलूंगा सही बोलूंगा, सच को छोड़कर और कुछ नहीं बोलूंगा। बजा दीजिए। फोन पे ऐसे पूछते हैं, मेरा नाम अच्छा है, आपको थोड़ा ज्यादा तो पता लग गया होगा। मेरी बात उतनी ही होती है, सामने पेशेंट बैठता है या फोन पे पूछता है, कोई भी डिसीज वो बोलता है, मैं उतना ही बोलता हूं कि मेरी कंडीशन उतनी है, आदमी जिंदा होना चाहिए। बजा दीजिए। ऐसी एक बीमारी नहीं है जिसमें, जैसे कृष्ण कहां पे थे आप? कई बार गए थे, तुम्हें हाथ पे रख के बताऊंगा तो आपको बोल देना हाँ भाई मैं बाहर गया, तो उसमें क्या? तो इसकी कोई गारंटी थोड़ी होती है आप यहीं पे हो तो आप बोलोगे तो अच्छा लगेगा। मैं कोशिश करता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं बोलूं और सब लोग सुने, ऐसा ही मुझे लगता है। तो आप कहीं भी बाहर जाओगे तो मैं तुरंत ही पकड़ लूंगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ऐसी एक बीमारी नहीं है जो, जय श्री कृष्ण, ये पूरी थेरेपी जो है योगिक बैलेंस थेरेपी, जो जिसको सुनने के लिए आप आए हैं, तो ये पूरी थेरेपी का इनोवेशन कैसे हुआ? करीब करीब 15 साल से ये कर रहा हूं और 20-25-50 हजार पेशेंट मैंने क्योर किए हैं। बता दीजिए। दो बड़े डॉक्टर, हेलो जय श्री कृष्ण, कोई भी सवाल है मुझे करेंगे। रिसेंट में एक डॉक्टर है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ऑनर है, उसके घर में 25 डॉक्टर हैं। वो बहन का नाम बोलना अभी मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मैं बहन को ही बुला के लाऊंगा एक बार। तो वो मेरी पेशेंट हुई, उनको बहुत सारा प्रॉब्लम था, तो वो बहुत ही अच्छा फील करने लगी। 5वें दिन बोली कि मेरा शुगर कम हो गया और 15वें दिन बोली कि मेरा कोलेस्ट्रॉल तो बिल्कुल बदल गया। तो फिर उनकी नड़दोई को क्या कहेंगे आप, कैसे कहेंगे नड़दोई? उनकी नड़दोई जो थी उनको लिवर सिरोसिस, जानते हो लिवर सिरोसिस के बारे में? जी। अक्सर लिवर सिरोसिस दारू पीने वालों को होता है। 95%, 5% कोई वायरस ऐसा होता है। तो उनका लिवर फेल हो गया था, लिवर ट्रांसप्लांट करवाना था, केडी हॉस्पिटल में नाम लिखवा दिया था। तो उन्होंने मुझे पूछा कि इसमें कुछ हो सकता है? मैंने बोला सब में हो सकता है। फिर मैंने उनको 3 नंबर दिए, मैंने उनको दिया ये 3 नंबर में किसी से भी बात कर लो, उनको लिवर सिरोसिस था और मैंने क्योर किया। बजा दीजिए। तो मैंने एक को फोन किया और उनको बहुत अच्छा लगा। दूसरे दिन से उनकी नड़दोई भी पेशेंट के रूप में शुरू हो गई और आज करीबन 20 दिन जैसा हुआ है, वो भूल गई उनको लिवर सिरोसिस। और सेम दूसरा केस फिशुला के बारे में जानते हो?
क्रिएटिनिन डायलिसिस करवाना होता है। 8.5 क्रिएटिनिन था। मंजूबेन वाधवानी, उसका नाम मैं बोल सकता हूँ क्योंकि डॉक्टर नहीं है। मंजूबेन वाधवानी फिशुला करवा दिया था। डॉक्टर ने बता दिया कि डेवलप होने में भी टाइम लगेगा और तब तक आपका डायलिसिस शुरू हो जाएगा। आप सब लोग समझते हैं ना मैं हिंदी बोल रहा हूँ? हाँ, गुजराती वाले न समझे तो भी बता रहा हूँ। तो किसी ने मेरा नाम दिया तो वो आई, मैंने बोला ठीक हो जाएगा, इसमें कौन सा डायलिसिस। आज करीबन उनका भी कितना पता नहीं 25-30 दिन हो गए हैं। 1 पॉइंट क्रिएटिनिन कम हो गया और वो भूल गई कि उनको किडनी की तकलीफ है। बजा दीजिए। तो ऐसे ही ऐसा एक डिसीज नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो, और ऐसा एक डिसीज नहीं है जो मेडिसिन से कभी किसी ने क्योर किया। अभी मैं एक बुक लिख रहा हूं, उसमें मैंने लिखा है कि आप किसी भी डॉक्टर से, किसी फार्मासिस्ट से, यहां भी हो सकते बैठे, मुझे तो पता नहीं है, तो मैं गलत बोलूं तो मैं मर जाऊं। एक भी मेडिसिन ऐसी बनी नहीं है जो कि आपका डायबिटीज क्योर करे। बनी है, डायबिटीज डिटेक्ट हुआ, मेडिसिन शुरू हुई, ग्रेजुअली उनका डोज बढ़ता जाएगा, उनके कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाएंगे। ब्लड प्रेशर में भी वैसा है, माइग्रेन में भी वैसा है, थायराइड में भी वैसा है। एक डिसीज ऐसा नहीं है कि जो दवा से क्योर हो। Superior physician cures the illness before it is manifested, and the inferior physicians only cares for the illness which he was not able to prevent. कौन बताएगा उसका अर्थ? खड़े होकर फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुन लीजिए, और किसी के साथ मैं सुनना चाहूंगा। The superior physicians cures the illness before it is manifested, and the inferior physicians only cares for the illness which he was not able to prevent. खड़े होकर कोई समझाए। प्लीज। हाँ, लेडीज पर एक अच्छा ना एकत नहीं अरे लेडीज पर हाँ जी प्लीज आप बात જેને આ ફિટનેસની સબ્જેક્ટ પર વધારે જ્ઞાન છે એ તમને તકલીફોમાં પડ્યા પહેલા બચાઈ શકશે અને જેને નિમ્નતમ જ્ઞાન છે એ પ્રોબ્લેમ આયા પછી ખાલી એને સપ્રેસ કરશે પણ એને રૂટ થી નહીં કાઢી શકે। જે સુપીરિયર ફિઝિશિયન છે એ સ્થિતિ આવવા જ નહીં દે, એ સ્થિતિ આવવા જ નહીં દે કે તમને એ રોગનો ઉદ્ભવ થાય। અને જે ઇન્ફિરિયર ફિઝિશિયન છે એને એની પાસે જ્યારે પેશન્ટ આવશે એ ઇલનેસ લઈને, એ રોગ લઈને, ત્યારે એ રોગને પ્રિવેન્ટ કરવાનું કામ નહીં કરે છે, કેમ કે પ્રિવેન્શન આપણા પ્રેક્ટિસમાં હેલ્થકેરમાં પ્રિવેન્શન છે જ નહીં, એટલે મેનેજ જ કરશે। हाँ, એટલે ક્યોર नहीं करी શકે। ये दोनों का जवाब बिल्कुल बहुत ही सही था, मगर उसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा। The superior physician cures the illness before it is manifested। अर्थ है कि सही चिकित्सक वो है जो बीमारी आने के पहले उसे दूर करे। हेलो, क्लियर? And the inferior physicians only cares for the illness which he was not able to prevent। और एक आम चिकित्सक वो है जो बीमारी आने के बाद आपको बताएं कि चिंता मत ही करो, हम नहीं जाने देंगे। बजा दीजिए। क्या करेंगे? डायबिटोलॉजिस्ट के पास गए, डायबिटीज डिटेक्ट हुआ, डायबिटीज, आप चिंता ना करो, रेगुलर चेकअप कराओ और हम रेगुलर दवाई का डोज बढ़ाते किडनी फेल कर ही देंगे। ये आम चिकित्सक जो कि बाजार में जितने भी हैं, नाम किसी का नहीं बोलना है। एक डिसीज मुझे बताइए कि ब्लड प्रेशर की दवाई से ब्लड प्रेशर किसी का भी क्योर हुआ हो, ऐसा है किसी के पास? आप किसी को भी पूछ लीजिए, आपके डॉक्टर परिचित है तो पूछ लीजिए। ऐसी कोई मेडिसिन न बनी है न बन सकती है। ब्लड प्रेशर कितना हार्म, नुकसान कर रहा है, इट्स ए गेसिंग। हेलो, 80-120 किसने बताया? पता है किसने? नहीं पता। आपका प्रेशर 90-140 तो बोल दिया डॉक्टर ने आपका प्रेशर बढ़ा हुआ है, मेडिसिन लो। मेरी मदर 105 साल की है,
बजाना है तो बजा दो। 100 और 200, नीचे वाला 100 और ऊपर वाला 200। 25 साल से नाप रहा हूं मैं मेडिसिन नहीं। अरे 25 साल पहले मैंने मेडिसिन दी होती, प्रिवेंशन के नाम पे मेडिसिन दी होती, तो हो सकता है आज उनकी किडनी खत्म हो गई। जय श्री कृष्ण। इनके ऊपर किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो मैं आगे बढ़ाऊं, क्योंकि बोलने का शौक है मुझे। मुझे तो ये भाई बोलता है घंटा 1.5 घंटा नहीं, मैं तो 8 घंटा मुझे आनंद आता है यार। अब सुनने वाले भी ऐसे कहाँ मिलेंगे? कोई रोड पे जाता है, मैं बोल सकता हूँ इधर आओ मुझे सुनाना है कि नहीं? और घर में कौन सुनेंगे? आपके घर में आपकी कोई सुनता है? किसी के घर में किसी की कोई सुनता। तो मुझे जैसे नहीं खाने की भूख लगती है, प्यास लगती है, यूरिन लगती है, टॉयलेट लगती है, वैसे बोलना लगता है। मतलब जो वक्ता होता है ना, उसको खुद ही बोलना है। आप किसी के पास बोले तो ये आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, बोलना बहुत अच्छा है। यही बात बोलूंगा, मेरा एक भी शब्द न गलत होगा न ज्यादा होगा। जो भी बोलूंगा पूरी प्रामाणिकता से, जो भी मैंने आज तक किया है वही बोलूंगा। आप कुंडली निकाल सकते हैं, कुंडली निकाल अहमदाबाद छोटा सा है 25 बाय 25 में 15 साल से यहाँ पे कर रहा हूँ, और करीब करीब 25-50 हजार पेशेंट क्योर किए हैं, नॉट केयर, क्योर। आम चिकित्सक बीमारी की केयर करते हैं, मेडिसिन लेते हैं। तो ऐसा एक डिसीज नहीं है जो कि क्योर ना हो सकता। सारे डिसीज जितने भी है आपके पास नाम। जैसे एक बोलो पश्चिम आगर में दूं, पानी पट पी लूं। किसी को कुछ पूछना है तो मैं थोड़ा पानी भी पी। हेलो माता जी, है ना? क्या आता क्या गांठों मारी हो? ये आप यहाँ बैठे हो, बिल्कुल नहीं बैठे हो। आप जहाँ पे होते हो वहां पे होती ही नहीं हो। हेलो, और यही बीमारी है। और मेडिटेशन है क्या? अभी मैं कराऊंगा। मेडिटेशन करवाएंगे, हम कराएंगे 5-7 मिनट में, आपको फील करा देंगे। जय श्री कृष्ण। आप पूछ लीजिए कुछ भी, कुछ ठीक है तो पूछा। लगभग क्वेश्चन सबका एक होता है। आपको अभी उसको पूछना था तो मन में ऐसा लगता है ऐसा थोड़ी पूछ सकते हैं, ऐसे ही। तो क्वेश्चन करीब करीब जैसे प्राण इस पूरे कॉस्मोस में, पूरे ब्रह्मांड में एक ही प्राण है। और विचार जैसे ये सबके विचार अगर लिख लिया जाए तो उसमें कोई फर्क नहीं है। बजा दीजिए। कपड़े अलग अलग हो सकते हैं। हेलो, किसी ने ऐसा सोचना हेलो अलग होता ही नहीं है, उतना ही होता है हर एक का। रोडपति हो या करोड़पति हो, रूप बल धन और पद। जय श्री कृष्ण बोल जोर के। रूप बल धन पद, 5वां कुछ चाहिए तो 1 महीना सोचने के बाद बताना इसको। आपको 5वीं कोई चीज चाहिए, 5वीं इसको छोड़ के, तो इनको बताना। आप बोल ही नहीं पाओगे, इनमें खत्म हो जाता है। और जो कि आपको ऐसा है कि मुझे मंडे को सुख चाहिए, संडे को सुख नहीं तो चले, ऐसा है? हर एक को चाहिए पूरा वीक, पूरा महीना, पूरी जिंदगी सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? हर एक को चाहिए उतना ही। और ये 4 को छोड़कर 5वां आपके पास कोई है तो अभी मुझे बता सकते हो कि मुझे 5वें में चाहिए इसमें सुख, बता दीजिए। तब तक पानी पी है कुछ 5वां कुछ है? एक भाई रुपये का भरा हुआ थैला लेके फकीर के पास गया। इनका जवाब दे रहा हूं, आप भी सुन लीजिए। पूरा थैला, और फकीर को बोलता है बाप मुझे शांति दो। ये पूरे पैसे, और फकीर थैला लेकर जो भागा, और वो भाई उनके पीछे 5 किलोमीटर दौड़ा, फिर फकीर ने दिया ले। हेलो, शांति जो है ना, सही बात ये है कि सबसे आखिर में चाहिए, जब मरने पड़े तब तो मिलती है नहीं।
ये चार ही चाहिए, सुख, बल, धन और पद। शांति किसी को भी नहीं चाहिए। बुद्ध हर एक भाषण में, बुद्ध जब बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया उसके बाद 10-10 हजार भिक्षुओं को लेकर सब गांव-गांव घूमता था, प्रवचन देता था। तो एक जगह उन्होंने बताया कि बुद्धत्व हर किसी को उपलब्ध हो सकता है। माता जी, बुद्धत्व हर किसी को उपलब्ध हो सकता है। तो एक बंदा, जैसे बहन ने बताया, खड़ा होकर पूछा, तो बोले क्यों नहीं मिलता उस किसको? तो बुद्ध ने बताया सभा खत्म होने तो मैं जवाब देता हूँ। सभा खत्म हो गई, फिर वो बंदा को बुलाया, फिर बंदे को बताया बुद्ध ने कि आप कुछ नोट लिखने के लिए ले जाओ, पहले कागज पेन होगा मुझे पता नहीं है, मगर आप हर एक घर पे जाओ, छोटा सा गांव है, हर एक घर में एक एक व्यक्ति को पूछ लो आपको क्या चाहिए। तो पहले मगर भाई के घर में गया, तो मगर भाई बोले पत्री अभी मर गई, दूसरी चाहिए। मगर भाई के बेटे को पूछा तो इनको ये चाहिए, उनको गाड़ी चाहिए, उनको ये चाहिए, उनका नया मकान चाहिए। पूरे गांव को घूमकर 10 दिन के बाद आया, बुद्ध ने बताया पढ़ो तो किसी को भी बुद्धत्व चाहिए, जो चाहिए वो आपको मिल ही जाता है। आपको दुख चाहिए वो मिल ही जाता है, आपको बीमारी चाहिए मिल ही जाती है। तालियां बजा दी। शांति के लिए तो कुछ नहीं करना। हेलो, शांति के लिए आप जितना करोगे सब अशांति के लिए ही कर सकते हो, क्योंकि शांत तो है ही आप। शांत तो मनुष्य का स्वभाव ही है। शांत तदा दृष्टा स्वरूपेव स्थानम। आप स्वभाव से शांत है ही, ये आपने अर्जित किया है मेहनत करके। हेलो, आपने दुख मेहनत करके पाया है। हेलो, इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। शांति तो बिल्कुल फ्री में मिलती है, मगर वो हमें चाहिए। हम मेहनती लोग हैं, हम डायबिटीज के लिए मेहनत करेंगे, हम ब्लड प्रेशर बढ़ेंगे, हम ओबेसिटी बढ़ाएंगे, हम कुछ भी खाएंगे, हम कुछ भी सोचेंगे। हेलो, फिर 135 किलो वजन हो गया, हेलो, फिर उनके लिए करेंगे, तो हम मेहनती लोग हैं। हमें गुजराती तो ज्यादा मेहनती है। हाँ जी, तो शांति अभी हो रही है यहाँ पे, इस मोमेंट पे शांति, मगर चाहिए किसी को भी। जय श्री कृष्ण। मेरे सब्जेक्ट पे ही आऊँ मैं, और आप कोई सवाल कर लीजिए ताकि इनके ऊपर भी कुछ हो, क्योंकि मुझे कोई, मैं बिठा वहाँ पे कथा मैंने की, वो यहीं पे कहूँगा ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पता भी नहीं है वहाँ पे क्या बोला। जो बोला वो हेल्थ और योग, अष्टांग योग, हठ योग और हेल्थ, ये मेरा सब्जेक्ट है। हेल्थ को लेकर आप कुछ भी पूछ लीजिए, कुछ भी पूछ लीजिए। अष्टांग योग को लेकर पूछिए, हठ योग को पूछिए। जी, बीमारी को हम कैसे बुलाते हैं? आपने कहा जैसे, हाँ, अनजाने में, कोई जान के तो नहीं बुलाता, अनजाने नहीं। आपका आहार विहार विचार 90% बीमारी। सब्जेक्ट शुरू हो रहा है, जैसे 90% डिसीज इज साइकोसोमेटिक। मेडिकल साइंस अभी कह रहा है, अभी आज से 10 साल पहले नहीं कहता था। 10 साल पहले मेडिकल साइंस, अभी अच्छे डॉक्टर बताते हैं कि डायबिटीज है, कोई शरीर का रोग नहीं है, ब्लड प्रेशर है, माइग्रेन है, थायराइड है, ये साइकोसोमेटिक। साइकोसोमेटिक माने मानसिक रोग। अब इलाज कहाँ पे होता है? शरीर। हेलो, कॉज कहाँ है? मन पे। अब मन कोई पदार्थ है, मन कोई दिखेगा, मन के ऊपर क्या कर सकते हो आप? कोई भी साइंस, हेलो, इसमें पर्टिकुलर एलोपैथी की बात की अगर मैं कर सकूं तो उतना ही है कि वो बीमारी पड़े हुए डॉक्टर है। स्वास्थ्य पढ़ा है कोई डॉक्टर? हेलो, बीमारी ही पड़े हुए हैं और मुर्दे पे पड़े हैं, मुर्दे पे ही पड़े हैं, तो उनके पास अपेक्षा स्वास्थ्य की न रखें। जय श्री कृष्ण। जितनी भी बीमारी है उसमें 90% कोई कार्मिक बीमारी, कर्मजन्य है। जैसे कि कोई बच्चा पैदा हुआ, अब उसने कुछ भी नहीं किया, टाइप 1 डायबिटीज है, उसमें उसका कोई रोल नहीं है। लूला लगड़ा कुछ भी खराबी वाला आया तो उसमें उसने क्या किया है, वो कारण शरीर यानी पूर्व जन्म की बात है। मगर 90% डिसीज साइकोसोमेटिक है, मन की देन है, और मन को हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये पूरा मेरा जो सब्जेक्ट है हठ योग का, वो यहीं से शुरू होता है।
हाँ जी। तो कैंसर जो बीमारी है वो मेंटल ठीक बीमारी है। नहीं है। रिंगटोन, आपकी रिंगटोन आपने कभी सुनी ही नहीं है, देख लीजिए। अगर ठीक से सुने तो वो रिंगटोन मेडिटेशन बन गई। हेलो हेलो, आप जो भी काम करते हैं वो काम ढंग से किया, वो काम मेडिटेशन बन गया। मेडिटेशन कोई अलग से ऐसे करने की क्रिया नहीं है। शुरुआत में ठीक है, 24 घंटा मेडिटेशन हो सकता है। जैसे कैंसर की बात हुई, अब ये डीप बहुत गहरी बात है। कितना पेस्टिसाइड, कितना पॉल्यूशन, कितना बदल रहा है। पिछले 20 साल से मैं देख रहा हूँ, मैं 63 अभी खत्म होने वाला है, तो मैंने जो देखा है, एक छोटा सा गांव देखा है जहाँ पर मैं जन्म हुआ था, वो देखा है। वो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक हमने साधनों का अंबार लगा दिया। 50-60 प्लस के कोई है, 60 प्लस के, 60 प्लस के जो भी है, आज से 50 साल पहले आपको कोई अगर बोलता मुझे कि यहाँ बैठे बैठे आप अमेरिका बात कर सकते हो, तो आप 3-4 चाटा उसको लगा दे जोर से। साला पागल हो गए है क्या? हेलो, होता कि नहीं? ऐसी कितनी बातें हैं जो 100 साल पहले स्वर्ग की कल्पना में भी नहीं होती थी। मालूम है स्वर्ग में BMW नहीं है, अभी एम्बेसडर ही है वहां पे। हेलो, एम्बेसडर के बारे में कमेंट है कि हॉर्न को छोड़कर सब कुछ बचता है। स्क्रॉल कर रहे थे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। तो पिछले 50 साल में हमारी, हेलो हेलो प्लीज, आप जो भी है वो अपना कर लेंगे, वो बाहर नहीं आता है वो बेटा संभालेगा, आप ना। पिछले 50 साल में सुविधाओं का अंबार लग गया है। कल्पना नहीं कर सकते आप। 50 साल पहले जो स्वर्ग में भी कल्पना नहीं कर सकते, हम सोच नहीं सकते थे, वो सब आज सब्जी बेचने वालों को भी उपलब्ध है। सब्जी बेचने वाले जो मिलियनर भी कल्पना, अकबर नहीं कर सकता था कल्पना, या हमारे जितने भी राजा महाराजा हो गए वो कल्पना नहीं कर सकते। उससे ज्यादा अभी सुविधा है। ये बटन दबाओ, ठंडा 25 डिग्री, बाहर भले 50 हो, है कि नहीं? आप देखो तो कितनी गाड़ियां जो हम कल्पना, एम्बेसडर फियाट को छोड़कर हमारे जमाने में तो एम्बेसडर तो लॉटरी लगी ऐसा होता है। वो बजाज का आता था स्कूटर, मालूम है? वो 5-6 साल के बाद आपका नंबर आएगा, लॉटरी लगी हो ऐसा। अब देख लीजिए आप, गाड़ी की अंबार लग गई है। कितनी गाड़ी, कैसी गाड़ी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो हमारे सुख के लिए साधनों का अंबार लग गया है। पिछले कुछ सालों में भौतिक पदार्थ की इतनी गति है कि इतना अंबार लगा दिया, मगर हमारे सुख से उसमें कुछ फर्क हुआ है? प्रामाणिकता से पूछ लीजिए। शायद हम उससे दुखी ज्यादा हुए हैं, सुख बिल्कुल नहीं हुए। साधन नहीं थे तब सुखी थे, मगर है तो ये गलत है ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ। सुविधा अच्छी बात है, यहाँ बैठे बैठे अमेरिका बात करना कोई बुरी बात नहीं मैं बोल रहा हूँ, मगर उससे हमारे सुख का कोई लेना देना नहीं। समझते हैं कि बड़ा बंगला हो जाए, फार्म हाउस हो जाए, मजा आ जाएगी। क्या खाक हो जाएगी? समूह भाई को पूछो, 100 बीघा की बाड़ी है, हमारे मित्र है समूह भाई, 100 बीघा और अहमदाबाद के करीब, और 70 तो गाय हैं। वो तो मजा कर रहा है आदमी, और मुझे मैं भी जा रहा हूँ उनके पास। 100 बीघा में बाड़ी, नारियल और दुनिया भर के मांग लो 70 गिर की गाय। जय श्री कृष्ण। बीमा, अरे प्लीज मोबाइल चेक कर लो एक बार प्लीज। चालू मुझे मोबाइल नॉट कर दिया, हमको क्यों है? मोबाइल जब था ही नहीं तब क्या नहीं चिंता थे। हेलो, पीपी नंबर देते थे मालूम है? पीपी बोला कहता था, मोटी लग्जरी કહેવાતી यार। આના ઘરમાં મોબાઈલ છે, લેન્ડલાઈન હતી, હવે ઘર ઘરમાં 3-10 મોબાઈલ, પણ આપણા સુખમાં કઈ વધારો થયો હોય એવું જરાય નથી। હા, હું સબ્જેક્ટ ઉપર આવું છું। બજાઈ લો और क्या। રાત્રે 2:30 વાગે ઓનલાઈન હોય જો માણસો હે, સવારે ઉઠીને છાપું ના આવે તો સંડાસ ના આવે, ખબર છે? હેલો,
ખબર છે ઘણા ચા ના પીવા ચા ને ટોયલેટ કોઈ લેવા દેવા છે છાપાની ટોયલેટ ને જૂનું છાપું લઈને જવું પડે બંધ હોય આદતોનો ભંડાર છીએ આપણે શું છે સાયકોસોમેટિક ડિસીઝ એટલે કે મનના કારણે થતી બીમારીઓ सॉरी डिसीज 90% साइकोसोमेटिक यानी मन की देन है। अब मन को आप क्या कर सकते हैं या और दुनिया की कोई थेरेपी आप पकड़ लीजिए कोई भी थेरेपी कुछ कर सकती है। मैं मेरे सब देख रहा हूं आप सब लोग अपना राइट हाथ ऊपर उठाएं राइट नीचे लेफ्ट नीचे थोड़ा आगे झुकिए वापस अब मैं आपको ऐसा बोलूंगा आप खड़े हो जाए तो आप हो पाएंगे मैं बोलूंगा आप चलो तो आप चल पाएंगे फिर मैं बताता हूं कि 2 मिनट के लिए अभी मैं आपको बोलता हूं 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें और बिल्ली के बारे में मत सोचें अभी आपकी प्रॉब्लम खत्म अभी जिसको कैंसर है वो मिट जाएगा डायबिटीज है वो कितना भी है इंसुलिन के ऊपर 0 हो जाए होगा क्या हेलो अभी तक बिल्ली के बारे में सोचा था आपने कभी और बिल्ली कोई सोचने की चीज है बिल्ली आपके सामने से निकल भी जाए तो क्या फर्क है आप सोचेंगे भी नहीं मैंने अभी ना बताई ना आपको साला ये मन है जैसी कहते बोलो अब इसकी सारी उपाधि है तो क्या करे तो हठयोग की दलील ऐसी है जैसी कृष्ण आप बहुत अच्छे से सुन रहे हो सुनने का भी प्रकार होता है हेलो मुझे पता लगता है कि कौन कितनी कितनी गहराई से वो सुन रहा है सुनना भी एक कला है सुनना बिल्कुल कला है तभी बोलना आ सकता है आपको सुने बगैर बोलना नहीं आ सकता जैसे करने मेरी सुनता कम है कोई समझता है ये सुनता नहीं बोले कन्हैया तो जो बिल्ली है वो सोचने की चीज नहीं मगर ना बताई इसलिए 2 मिनट आप एक बिल्ली से शुरू होगा और बिल्ली 2 मिनट में तो बिल्लियों का झुंड शुरू हो जाएगा आप सोचेंगे इतनी तो बिल्ली कहां से आई सर एक भाई था वो साधु की संत महात्मा की सेवा कर रहा था क्योंकि आशीर्वाद चाहिए था संत को तो पता होता है कि साला ये बकवासी आदमी इनको कुछ चाहिए तो एक बार बेचारे दया आ गई तो बोला बेटा हाँ बोले यहाँ बैठ बेटा ये एक मंत्र दे रहा हूँ रात को 12 बजे आप इस मंत्र का 100 बार जाप करोगे ना तो आप जो चाहोगे वो आपको मिल जाएगा और जो भाई बंदा वो मंत्र लेके भागा क्योंकि उनको तो उतनी ही बात थी वो दौड़ के भागा और बाप ने बताया बेटा यहाँ पे आ देखो मंत्र बोलते हो बीच में बंदर मत लाना तो वो भाई बोला मैं क्यों बंदर लाऊंगा भागा और 12 बजे जैसे ही बैठा बंदर शुरू हो गए और इतने बंदर तो रात को दौड़ के वो बाप जी के पास आया कि नहीं देना था तो ना बोलना था ये बंदर क्यों घुसा दिया यही हमारी खोपड़ी है और यही खोपड़ी के रोग है तो हम कैसे करें तो जितनी इफेक्ट मन की यानी विचारों की शरीर पर है उतनी इफेक्ट शरीर की मन पर होनी चाहिए हाँ या ना होनी चाहिए एक सिक्के के 2 पहलू है आप लोग ऐसे बैठे कोई ऐसे बैठेंगे थोड़ी देर में ऐसे बैठेंगे घर पे तो ऐसे बैठते घर पे तो कैसे बैठते गंदे हेलो मैं बोलता हूँ यार क्या कर रहे हो आप गाड़ी उल्टा पार करते हो तो बोले नहीं तो बोले तू क्या कर रहे हो तुम्हारी 50 लाख 5 करोड़ की गाड़ी आप टनाटन ठीक से पार करते हो और शरीर तो साला ऐसे घुसड़ गया क्या जुर्म करते हैं शरीर मैं ऐसा बोलता हूँ कि सिर्फ सीधा बैठो 50% डिसीज निकल जाएंगे मगर बैठ नहीं पाएंगे खुजली आना शुरू हो जाएगा आपको कितना भी बोले मुझे कितना भी आप बोलो कि भाई साहब 1 लाख रुपया दूंगा आप ऐसे बैठो तो मैं बोलते बोलते ऐसे हो जाऊंगा हेलो आप बोलते बोलते ऐसे हो जाओ तो खाली सीधा बैठने से इतने सारी बीमारियां दूर हो जाती है मगर आप बैठ पाओगे नहीं अभी आप सोचोगे कि साला घर से कल पे जाकर कन्हैया लाल की जय और 2-5 मिनट में तो मेरे ऊपर गालियों की बारिश करके साला बाहर में गया दिलीप भाई ऐसा थोड़ी करते ऐसे यही ठीक है क्योंकि शरीर भी तो मन तो आपका कहा मानता नहीं है
शरीर, मैंने बताया राइट हाथ ऊपर करो तो किया, शरीर आपका कुछ मान रहा है तो उसका उपयोग करके यहां से हठयोग का जन्म होता है। आपके पोस्चर को अलाइनमेंट करो। कोई भी बीमारी सिर्फ 3 ही वजह है बीमारी की। कितनी? 3। चौथी वजह मुझे बताना, कोई डॉक्टर हो या किसी को पूछ के। एक, सुन रहे हो सब? ठीक से है? मेरे और आपके शरीर में 96,000 किलोमीटर, 96,000 किलोमीटर पाइपलाइन है। ये मेडिकल साइंस की बात कर रहा हूँ, मॉडर्न मेडिकल। आप पूछ सकते हैं कि हमारे शरीर में पाइपलाइन कितनी है जिसमें से ब्लड बर्न होता है, तो 96,000, जिनमें से 24 घंटे एक गति से पूरे 50,000 अवध सेल आपके शरीर में कितने और 12 सिस्टम। कौन कौन सी? कार्डियक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, ऐसी 12 सिस्टम काम कर रही है। 50,000 अवध सेल है, वो सबका खुराक क्या है? ऑक्सीजन वाला ब्लड। उनको कोई रोटी दाल सब्जी से लेना देना। 96,000 किलोमीटर पाइपलाइन है जिनमें से 24 घंटे एक तेज गति से ब्लड का फ्लो हो रहा है। एक, दो, आपके शरीर में इलेक्ट्रिसिटी, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, वैसे एक व्यक्ति के शरीर में पूरे अहमदाबाद को एक दिन चले उतनी इलेक्ट्रिसिटी है सबके पास। ये मॉडर्न साइंस की बात कर रहा हूं, आप पूछ सकते हो। जो इलेक्ट्रिसिटी यहां से इस और 31 लाइन, इस और 31 लाइन चैनल निकलती है, और पूरे शरीर में सारे आपके जो सिस्टम है, किडनी, लीवर, पैंक्रियास, गोल्डन, लानियात, बोटियात, आंख, नाक, कान, जो भी है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई 2400 घंटे होता है। दो, ये दोनों प्रूवन बात कर रहा हूं, आप किसी भी मेडिकल वाले से पूछ सकते हैं। ये सही है तो बोलेगा। तीसरा जो प्रूवन नहीं है मगर है, 72,000 नाड़ियों में से आपके शरीर में प्राण का वहन होता है। कितना? 72,000 नाड़ियों। एक व्यक्ति यहाँ पे सोया है, दूसरा यहाँ पे सोया है, ये मरा हुआ है, ये जिंदा है, क्या फर्क है दोनों? और क्या? पैर वही है, हार्ट भी है, किडनी भी है, आंख भी है, कान, सब कुछ है, क्या नहीं है? वो इनविजिबल है, वो प्राण की चैनल। 72,000 नाड़ियों में से प्राण का वहन होता है। ये 3 चीज बताई। क्या क्या बताया मैंने? पहला ब्लड सर्कुलेशन, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा ये तीनों का वहन अगर ढंग से चैनलाइज नहीं हुए, जहां पे वो डिस्टरबेंस आया वहां पे बीमारी आई। आपकी पैंक्रियास के अगल बगल में ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, या प्राण का वहन नहीं है, डायबिटीज होगा। पैंक्रियास का बीटा सेल इंसुलिन कम बनाएगा और डायबिटीज। कोई सा भी रोग पकड़ ले, 90% रूट कॉज इतना है। अब इलाज तो इसका होता ही नहीं है, किसका होता है? कोई मेडिसिन ऐसी बनी है कि जो ब्लड का फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी ठीक कर दे, प्राण ठीक कर दे, ऐसी बनी है? बन ही नहीं सकती। बनी तो है ही नहीं, बन ही नहीं सकती। कैसे हो सकता है कि जैसे आपका स्ट्रक्चर सबका देख रहा हूं गंदा है, बजा दीजिए। आप सब बैठे हो बकवास, आप सोते भी बकवास हो, खड़े भी रहते, ऐसे खड़े रहता है। मैं बोलता हूँ इसने कोई गुनाह किया है यार, ये ऐसे खड़े। मैं बोलता ऐसे रहो यार, दोनों पैर रोका देती है। हम गलत ढंग से खड़े रहते हैं, गलत ढंग। अब आप सब लोग चल के देखोगे, आपका पैर ऐसे होंगे, चलोगे यहाँ से? क्यों? जवाब नहीं आपके पास। पंजे कुदरत ने ऐसे दिए, ऐसे चलना चाहिए, मगर हम तो ऐसे चलेंगे, ऐसे। जैसे कृष्ण बोल, हमारा सोना, हमारा बैठना, हमारा चलना और खड़ा रहना, ये 4 चीज आपके शरीर के पोस्चर को खराब करती है। पोस्चर का खराब हुआ और इलेक्ट्रिसिटी, ब्लड सर्कुलेशन और प्राण का सर्कुलेशन में कुछ डिफॉर्मिटी आई, कुछ कमी आई और वो रोग बने। वो ठीक कर दो, बात करें होगी। कैसे ठीक कर दो? तो पोस्चर को अलाइन कर दो, डायबिटीज हो गया। एक व्यक्ति को 10 बीमारी है, 40 मेडिसिन ले रहा है, 8 डॉक्टर की फाइल चल रही है, सारी खत्म हो जाएगी, बजा दीजिए। गारंटी देता हूं, मैं तो पागल तो हूं नहीं, है कि नहीं? ऐसा लग रहा है कि मैं पागल हूं? जो भी बोल रहा हूं ना, अभी राजपथ क्लब में वर्ल्ड योग के ऊपर लेक्चर था, तो बीच बाजार राजपथ क्लब में डॉक्टर बहुत सारे
डॉक्टर्स हैं, तो 250 लोग थे। तो मैंने ये बताया कि डायबिटीज डिटेक्ट होने के बाद डॉक्टर के पास जाते ये पहली भूल। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा, डॉक्टर के पास गए, वो भूल। वहां से शुरू हुई, किडनी फेल तक आपको पहुंचा देंगे। तो फिर पूरा खत्म होने के बाद 25 लोग आए और उस एक आदमी ने बताया कि आपने फला बाप का नाम सुना है? बड़ा डॉक्टर, नाम नहीं बोलूंगा मैं बोला हाँ, उनका कितने पेशेंट मैंने क्योर कर दिए। वो आया था मेरे पर चढ़ने, मैं चढ़ गया उसके ऊपर। फिर वो भाई बोलता है कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? मैंने बताया, मैंने देखो 3-4 हजार लोगों का डायबिटीज क्योर कर दिया। अगर आप मेरे साथ हो तो अभी मैं अनाउंस करता हूँ, राजपथ क्लब के मेंबर में यहाँ पे आकर 25 लोगों का फ्री में डायबिटीज क्योर कर दूंगा। आपको थप्पा लगाना पड़ेगा और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के। वो ना तो नहीं बोल सकता, मगर करेगा। हेलो, बजा दीजिए। तो बीमारी जो है वो इतनी छोटी है, इतनी छोटी बात है, अगर अलाइन कर दिया बात खत्म हो गई। ये चैनल शुरू हो गई, डायबिटीज ठीक हो गया, किडनी ठीक हो गई, लीवर ठीक हो गया, खोपड़ी खराब थी ठीक हो गई। हेलो, डाउट तो लग रहा है बहुत, साला अच्छा सही बोल रहा है कि गलत? प्रमाण के साथ मैंने तो पहले बताया ना कि मैं एक भी शब्द न गलत बोलूंगा, न ज्यादा बोलूंगा, ज्यादा भी नहीं। जो बोल रहा हूँ मैं बिल्कुल एक शब्द ज्यादा नहीं है। फोन पे भी बोल देता हूँ, आदमी जिंदा होना चाहिए या तकलीफ कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? जिंदा है ना, मुर्दे को ट्रीटमेंट हम करते नहीं, बस उतनी बात। अगर वो करते तो उसको भी जगह देते, मगर वो नहीं करते। आदमी जिंदा है। मैंने बताया अभी जो रिसेंट 2 ऐसे करीबन 25,000 पेशेंट हमने क्योर किए। कोई ज्यादा बजा दीजिए। तो उसका एक छोटा रूप लेकर आए हैं, छोटा कि भी किसी को, जैसे हमारी इंडियन मेंटालिटी में, मैंने आज तक मेरा अनुभव में बोल रहा हूँ, अभी मैं एक बुक लिख रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ। ऐसे बुक लिखना, वो नहीं, लिखने का शौक है, बोलने का शौक है, पढ़ने का शौक है। मैं 2 घंटे से ज्यादा कभी सोया नहीं हूँ 45 साल से। बजा दीजिए। और आवश्यकता नहीं है, 1.5 घंटे की ही है आवश्यकता। 8 घंटा सोने की आवश्यकता, 8 घंटे सोने के बाद भी ज्यादा चाय पिए तब वो, अरे क्या कर रहे हो यार? रात पूरी आपने सोए ही कहाँ थे? रात में भी चलते चालू रहते हैं, खोपड़ी गर्म होती है। भगवान बचाए। तो कहाँ था मैं? हाँ, तो मैंने उसमें शुरुआत वहां से लिखी कि शरीर को भोग बनाकर, यानी शरीर को तकलीफ देकर दुनिया भर की संपत्ति अगर मिल भी जाए तो ये घाटे का सौदा है। शरीर को नुकसान करके दुनिया भर की संपत्ति मिल जाए, अगर डायबिटीज मिलता है और दुनिया भर की संपत्ति मिलती है तो दुनिया भर की संपत्ति छोटी